Before we start, it's an absolute privilege for me to introduce our speakers, and we really had the best people possible to talk to you about cybercrime. Let me start by introducing Advocate Dr. Prashant Mali. He's one of the foremost experts in the field of cybersecurity, cyber law, and data protection. Dr. Mali is a practicing lawyer at the Bombay High Court. He has over 25 years' experience in IT and legal industries, which is an unusual combination, but it's a powerful blend that positions him as a leader in this fast evolving digital and legal landscape. He has a PhD in international cyber law and cyber warfare. He's got a master's in computer science and an LLM. His work has been widely recognized, and he's the author of 8 books on cyber law and cyber crime. He's done 16 research papers and writes regularly for various publications, and is a frequent invitee every time there is a big fraud to explain what has happened. Dr. Mali has secured numerous landmark judgments, both in civil and criminal courts, and served as a legal counsel for government agencies, corporations, as well as for individuals. A fund of stories, and we've had the privilege of listening to both our speakers before. I'm glad you're going to have an opportunity to hear him. He has been recognized as one of the top 50 global cybersecurity leaders and influencers for 3 consecutive years. The most recently, 2024, he has received numerous accolades, including Best Cyber Lawyer and Data Protection Law Influential Leader Award. He's going to share his expertise on understanding fraud trends and emerging threats. His FD, his wife's FD, his son-in-law's FD, the trauma multiplies. You getting point? Everybody looks to him down. So these are the topics which are very important. From there, obviously, they become suicidal, it becomes very psychological, they got depression, so on and so forth. You won't imagine the amount of phones I keep getting. Now see, so these are problems, like digital arrest I told you, second fraud I'm going to tell you, and then I'm going to tell you what are problems, and now how solution is creating trauma. Many times what happens, when you are ill, you go to doctor, okay, so that's a problem solving process, डॉक्टर के पास गया, तो कई बार ऐसा होता है डॉक्टर ने दवाई दिया और दवाई प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे कोविड वैक्सीन. So we want to talk about that also, कि दवाई कैसे प्रॉब्लम कर रही है. Okay, second type of major fraud, because Yogesh has done his job nicely and he talked about frauds. मैं सिर्फ आपको real life चीजें बता रहा हूँ. Stock market app scam. I go to Delhi, I go to Chennai, Hyderabad, Bangalore, and when my session is there, I always have group of people coming. Okay, because of मैं इस बारे में बोलूँगा. And then there are 40, 50, 100 people groups sitting, or their representative coming and saying हमने WhatsApp group बनाया, ये हम सब लोगों को सब लूट लिया है. And you won't believe the profile of these people. जब करोड़ों रुपया कोई दे रहा है, तो प्रोफाइल तो छोटा मोटा होगा नहीं. IT directors, brokers, see the fun, brokers, chartered accountants, lawyers, ये सब गैंग होते हैं इसमें. Stock market, they have made WhatsApp group. I went to forget tier 1 city. I went to बड़ौदा में एक बंदा आया, मैंने बात किया, I was telling him कि क्या नहीं होता है. We are not going to that point. मैं बता रहा था कि कैसे हेल्प नहीं होती. तो मोमेंट वो आया मेरे पास, वो मुझे पता है सर, ये देखो WhatsApp ग्रुप, इसी में से मेरे को पकड़ा गया था, मतलब मेरे को बकरा बनाया गया था. मैं अभी भी इस WhatsApp ग्रुप पे हूँ. ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे लोगों को काट रहे हैं. लेकिन अगर मैंने इनको बोला कि यू डोंट इन्वेस्ट, आई एम द विक्टिम, मुझे निकाल देंगे, तो आप हो क्यों इसमें? तो मैं सबको बताते रहता हूँ. अवेयरनेस. दैट मैन कैन लॉस 20 lakhs. जस्ट इमेजिन कि कितना डीप है कि हम चाकू चूरे खा के भी लोगों को बता रहे हैं कि चाकू चूरे हमने खाए, आप मत खाओ. It's so deadly. You think the psychological pattern of people which has come out. Or he was again telling me, that was I think
बड़ौदा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस. So he was telling me, sir, I can make you meet groups of people. Now बॉम्बे में भी है, बॉम्बे में, साउथ मुंबई में there is a big group, नॉर्थ मुंबई में there is a big group. 10-15 दिन में मुझे फोन करते हैं, सर कुछ हाई कोर्ट में करेंगे. अभी मुझे ये बोलो कि what are courts going to do when आपने ऐप डाउनलोड किया, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया, some people have taken loans and invested in this money. Now let me tell you, one of them is my brother, my own brother. He's the only brother. He loses money and then comes to me. Okay, and then he tells me, मैंने तो लोन भी लिया है. And you see what he did. वो ऐप वालों को ही पूछते हैं कि मुझे आप लोन दोगे क्या इन्वेस्ट करने के लिए. Then I found out that not he, there are many people who take loan and put money. 4 दिन बिफोर एक्स कलेक्टर आया ना मेरे पास, नवी मुंबई से, एक्स कलेक्टर. He told me when he was leaving my house कि सर मैं एक्स कलेक्टर हूँ. First he told me he is ex civil servant, told me food supply, ये वो सब बोला. I can't take this name of this, but just tell you. Okay, he lost 7 crores. Abhi, I know many questions will come to your mind, which we clearly don't want to discuss. But this is happening. Okay, I know some people are happy, but that is not a good expression even. Because a pain is a pain is a pain. It can be to anybody and everybody. It remains same. So the point is, स्टॉक मार्केट एंड फ्रॉड में कोई भी फंस सकता है. Anybody can get. Now, then what are the guardrails here? There is a lot of awareness being done by Money Life or CNBC or all the channels. बार-बार बता रहे हैं. And why go there? Your wisdom is telling you कि इतना पैसा नहीं बन सकता है. मेरी इस उम्र तक बना नहीं, आगे भी नहीं बनेगा. अगर आप जानबूझ के डाल रहे हो तो किसकी गलती हो? Okay, I don't want to blame you, but मतलब blame the victims, but I'm trying to tell you कि कहाँ फंस गए हम इसके अंदर. बैंक की गलती, people come to me, सर बैंक की गलती थी. आप बैंक की गलती मुझे बताओगे हम कंज्यूमर में जा सकते हैं. बट अगर आप नहीं बता रहे हो कि हमने खुद ने पैसा दिया है, कहाँ से गलती, कहाँ कोर्ट्स क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी, वो आखिर में बताऊंगा. ओके, फिर मेरे बाद फिर एक्स पुलिस ऑफिसर बोलेंगे ना, तो वो बाद में बात. ओके, सो 2 मैंने आपको फ्रॉड्स बताए जो अभी एकदम हॉट केक. ओके, तीसरा छोटा मोटा फ्रॉड जो होता है क्यूआर स्कैम, क्यूआर कोड स्कैम्स. स्कैम करो पैसा जा रहा है, स्कैम करो पैसा जा रहा है. ओके, ये कैसा होता है? बहुत सिंपल है. क्यूआर कोड में रिवर्स, वो इसने बताया शुरुआत में कि कैसे करते हैं. रिवर्स अप्रूवल आप देते हो, पैसा जाता है आपका. सिंपल है. तीसरा जो सोशल वाले जो क्राइम्स है वो है मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स. वो आज भी हो रहे हैं, है ना. मतलब शादी में अभी भी विश्वास है लोगों को, तो उसमें होता है. मतलब शादी.com पे होता है, secondshadi.com पे भी होता है, सब पे वो फ्रॉड हो रहे हैं. हाँ, secondshadi.com भी है. तो सब पे हो रहा है. ओके, सो मैट्रिमोनियल फ्रॉड एंड डेटिंग ऐप स्कैम्स. ओके, धड़ल्ले से पड़े हुए. नाउ फिर और क्या क्या हो रहा है आपको? ब्लैकमेलिंग स्कैम्स. ब्लैकमेलिंग थ्रू व्हाट? अभी सीनियर सिटीजन अपने पास ज्यादा है, तो लेट मी टेल यू. मेरे को जो केसेस आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज. आई गॉट अ कॉल 15-16 days, I'm not giving the date. He's a senior general manager, SBI, retired from banker. अभी somebody befriended him. Okay, girl obviously. He said कि एक
फॉरेनर लड़की थी, उसने मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजा। मेरा सबसे पहला सवाल था, आपको क्यों भेजा? मतलब ये सवाल अगर हम आप खुद को पूछना शुरू करेंगे ना कि एक अच्छी दिखने वाली लड़की या स्त्री आपको क्यों भेजेगी, है ना? इवन इफ वट एवर यू आर, मतलब आपने रिटायर्ड जनरल मैनेजर होने से मतलब what is it? Is that a profile where a young girl has to send you? अभी मैं यहाँ पे at this juncture I want to give you a tip. If she is a foreigner, जाके उसकी फ्रेंड लिस्ट में देखो, उसमें आपको 8 इंडियन ही मिलेंगे, वो भी मिड एज और सीनियर एज, तो आपको टिप मिल जानी चाहिए। ये फॉरेनर से इंडियन लोगों से दोस्ती क्यों कर ली? दूसरा टिप, उसका जो प्रोफाइल है वो 4-5 दिन पहले ही बना होगा, ओके, सो दैट मीन्स इट्स फॉर फ्रॉड। तीसरा टिप में आपको म्यूचुअल फ्रेंड मिलेगा, लेकिन आप उसके झांसे में मत आइए, तो म्यूचुअल फ्रेंड को क्लिक करके देखिए वो कौन है, और उस म्यूचुअल फ्रेंड को भी अलर्ट कर दीजिए कि अगर तो बकरा बन चुका है या बनने वाला है, ओके। तो हम दोनों ना बन जाए इसलिए बता रहा हूं। एंड इफ यू आर अलर्ट सिटीजन, then you have an option, report profile. Immediately profile report करके बोल देगा she is the person whom she pretends to be, ऐसा एक ऑप्शन आता है उसमें, she is not the person whom she pretends to be, okay, रिपोर्ट कर देगा। This is a good social work, because वही प्रोफाइल जाके 10 लोगों को लूटने वाली है, आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड है उसको भी लूट सकती है, लूट रही होगी, उससे अच्छा 10 लोग मिलकर रिपोर्ट करो, खत्म करो उसे। यू वुड से नया प्रोफाइल बनाएंगे, वो तो बात का कर्म है, आपने तो अपना काम किया, रिपोर्टेड। एवरीबडी रिपोर्टिंग बैड प्रोफाइल, बैड पोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां कहीं आपको ऐसे, अगर आप सबने इफ यू टेक दिस प्रण कि मैं दिन में 4 प्रोफाइल रिपोर्ट करूंगा, भाई ये दिन में एक भी प्रोफाइल रिपोर्ट करूंगा, ये बहुत बड़ा सोशल वर्क है। आपने किसी की जान बचाई है, किसी के पैसे बचाए। So these kind of moments are required where senior citizens can actually help. अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड जो मैं बता रहा हूँ, हाँ ये जो मैं बता रहा था, उसके साथ दोस्ती कर ली, एंड देन व्हाट शी डिड, शी वेंट ऑन व्हाट्सएप, फिर उसको न्यूड पिक्चर भेजा, न्यूड पिक्चर भेजने के बाद में उसका वीडियो मांगा, उसका वीडियो और इसका वीडियो पास में रख के उसको ब्लैकमेल करने लगे, क्या you got naked before my NDA, so start giving me money, देगा था पैसे। धमकी क्या है कि I know your friend list on Instagram and Facebook, and I'm going to send it to everybody. Very good. ये सब होता है, फिर ये सब क्या हो रहा है? अगर सेलिब्रिटी क्लाइंट्स also कि जिनके साथ ये हुआ है, और मतलब उनको ना बोलने के बावजूद उन्होंने पैसे दिए और जो पैसे का डिमांड कभी रुका नहीं है, ओके, तो अल्टीमेटली मेरे पैसे का डिमांड हुआ, उन्होंने अपलोड कर दिया। हाउ डज दैट मैटर? सी, आई वांट टू गिव यू टिप हियर। इफ ही इज टेलिंग यू कि मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, ध्यान से सुनो, वापस बोल रहा हूं, मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, तो अगर वो न्यूड पिक्चर और न्यूड वीडियो है तो YouTube क्या करेगा? अपलोड हो जाएगा, निकाल देगा। नहीं निकालेगा तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने दोस्त के साथ 2-3 लोग बोल सकते हो कि ये पॉर्न है, न्यूडिटी है, निकालो करके, निकल जाएगा वो, 100% निकलेगा। और ऐसा ही YouTube पे होगा, ऐसा ही इंस्टा पे होगा, और ऐसा ही फेसबुक पे होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 2-4 लोगों में तब तक समझो पता भी चल जाए, क्या बड़ी बात नहीं, ओके, बड़ी बात क्या कुछ नहीं। मैं तो डिफेंस लॉयर हूं, मैं आपको डिफेंस बताता हूं। क्या बताने का डिफेंस? वो अपना लास्ट स्लाइड देखा था ना, क्या था? What was the word? डीप फेक वीडियो है, क्या बोलेगा? डीप फेक। किसी ने बनाया? ये सुनो, डीप फेक वीडियो है। अभी डीप फेक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ओरिजिनल वन, इसीलिए इसको डीप फेक बोलते हैं, उसको क्लोन नहीं बोलते हैं, ओके? इट्स कॉल्ड डीप फेक, सो इट इज indistinguishable from the original one, इसलिए हम उसको डीप फेक बोलते हैं। डीप फेक है, या बोल रहे किसी ने ब्लैकमेल करने के लिए किया,
You get a point? So when you have these kind of defenses, don't fall prey to this stupid blackmailers. Okay? और आपको blackmailing का समझ में इनका इंग्लिश घर ये नहीं होता है वो हिंदी इंग्लिश स्क्रिप्ट में इंग्लिश हिंदी स्क्रिप्ट में बात करते हैं. You get a point? हमने we did I was I was involved in catching this Mira call center fraud. उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बन गई. There is a documentary on Mira Road call center fraud. I was with them, the whole team. We took 200 people to catch more than 600 people. Okay. उसकी घटना बता दी कि फ्रॉड लोग धंधा कैसे करते हैं. इट्स अ बिग गेम. ये एनसीआर रीजन में ये मेवात एक रीजन है इन द बाउंड्री ऑफ राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश. तो ये तीन बॉर्डर पे आता है मेवात रीजन. तो ये मेवात रीजन में कॉल सेंटर्स बने हुए और एनसीआर में भी कॉल सेंटर्स बने. एनसीआर के सोफिस्टिकेटेड कॉल सेंटर है. मेवात रीजन के घर वाले या खेतों वाले टाइप्स के कॉल सेंटर बना के रखे हैं. ओके, वेरी सिंपल. करते क्या है लोग इसमें से, इनको एक स्क्रिप्ट दिया होता है और वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं. मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ. ये कॉल सेंटर में जो हमने कैच किया था तो बंदे पकड़े थे, ये 4 माले का बिल्डिंग थी मीरा रोड पे. ओके, भाईंदर पे. चौथे वाले पे बकायदा ट्रेनिंग चल रही थी. There was a trainer who was training them how to call US citizens. मजा सुनो, how to call US citizens and talk in US English and उनको डरा के पैसा लेने का. अभी ये मजे वाली बात नहीं. मजे वाली बात ये है कि जो जिनको सिखा रहा था उनका प्रोफाइल देखो. 10वीं 12वीं फेल के बच्चे, हिंदी मीडियम उर्दू मीडियम के बच्चे, उनको सिखाया जा रहा था और वो इफेक्टिवली करोड़ों रुपए कमा रहे थे. कैसा? उनके लैपटॉप पे हिंदी में इंग्लिश का स्क्रिप्ट लिखा था. वो हिंदी पढ़ते थे, इंग्लिश निकलता था बिकॉज लिखा है वैसे. तो वो बन जाता था जैक, एंड्रयू. ऐसा बोलता था, आई एम जैक कॉलिंग फ्रॉम IRS. जैसे अभी हमारे यहाँ फ्रॉड हो रहा है डिजिटल अरेस्ट का, इसका पहला रूप, आई एम जैक कॉलिंग फ्रॉम IRS. वो अमेरिकन बनता था. एंड यू आर नॉट कीपिंग द फोन और CBI विल कम, सॉरी क्या FBI विल कम एंड अरेस्ट यू. FBI एजेंट्स विल कम एंड अरेस्ट यू इफ यू कीप द फोन. और उनको बोलता था कि अभी ये तुम्हारा टैक्स बाकी है, टैक्स इज पेंडिंग, यू नीड टू पे द मनी एंड यू विल ओनली पे फ्रॉम द गवर्नमेंट कार्ड. विद गवर्नमेंट कार्ड के लिए क्या बोलते थे, गो डाउन and go to the Tesco shop, buy Tesco का कार्ड और iTunes कार्ड. So when you take iTunes or Tesco card, or they used to say कि हमको नंबर दे दो. So they used to share the number, but Tesco और उसमें they used to put the money in the card. So refill the money with cash, and then they used to give the number. The number was noted down by the call center agent sitting here in Mira Road. The number was उसके बाजू में बैठा हुआ, वो तुरंत US में जो काउंटर पार्ट बैठा है उसको नंबर दे देता. वो चेक करता था बैलेंस है क्या, उतना बैलेंस है, छोड़ देते उसको. और ये करने के लिए 3-4 घंटे लगते थे. और ये बता फोन चालू रख के ऐसा गाड़ी ड्राइव करके जाता था, पैसा निकालता था या मतलब वो कार्ड लेता था, फिर गाड़ी जाकर वापस आता था, पैसा देता था. And would you believe this scam was running also from Ahmedabad and across the country. And the person who was running the scam, he had so much money that he had purchased Virat Kohli's Ferrari. Or he was having 5,000 people working for him. अभी आप सोचेगा कि आप लोग जो समझते हो ना कि मुझे फ्रॉड किया है छोटा मोटा, ऐसा नहीं है. पुराने पिक्चर देखते हो गैरेज में साइबर क्रिमिनल बैठे, जमाना क्या है. They are well funded, well equipped, well scripted, well managed, सब है इनका.
वेले हमको बनाते हैं ना, हम वेले बैठे हैं हमसे लूटने के लिए. ओके, सो सी इश्यू इससे भी गहन होते जाते हैं और डेंजर होते जाते हैं. आप लोग देखो, यू ओनली एनालाइज. हैव यू सीन दोस ओल्ड लॉटरी वाला ईमेल्स आता था ना आपको? नाइजीरियन स्कैम बोलते थे हम लोग उसको. हाँ, लॉटरी लगी है. डिड यू नोट द इंग्लिश ऑफ इट? समटाइम्स इट वाज वेरी पैथेटिक. वही अपना नॉर्मल इंग्लिश बोलते थे, तो वही लगता नहीं है लॉटरी वाला. आजकल उनका इंग्लिश देखो, फॉरगेट इंग्लिश. आजकल उनका जो स्क्रिप्ट आपको दिया ना उसने मार्केट करने के लिए, रीड दैट. That will appeal to you so much that you will feel नहीं, मेरे को सच में लॉटरी लग गया. फिर से ये इतना अच्छा स्क्रिप्ट किसने लिखा? AI ने. प्रोफाइल बेस्ड AI scripting to target the victim. I'll repeat. Profile based AI script to target the specific victim is the reality. पहले आप लॉटरी वाले जो लॉटरी में मेल भेजते थे उससे आप झगड़ते थे. आज एक डिटरमाइंड बंदा बैठा है जिसको भी टारगेट्स है, वो आपको लूट रहा है. गेम इज डिफरेंट. विद AI द डीप फेक पॉसिबिलिटी इज अमेजिंग. मैं जो बात कर रहा हूं, somebody records me, is recording me. अगर उन्होंने, there are many softwares now available. He takes my sound track, बराबर है, साउंड ट्रैक को बीच में से काटा उन्होंने, and he wants to add few words. He will just type in कौन सा वर्ड चाहिए. That app is listening to my, what I'm talking before. Based on that, makes my clothes, my voice, deep fake voice, adds to it, shows that. Okay, that type of fraud we are now in. Very dangerous. Okay, so if you are not in your senses when you are handling crisis, you may lose money. Okay, crisis like your son or daughter has been caught, they have got an accident in, ऐसा कुछ क्राइसिस में आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना जरूरी है. एक बार आपको आपके दिमाग में बोलना चाहिए कि क्या ये डीप फेक तो नहीं है. एक बार सिर्फ बोलो अपने फैमिली में, क्या है डीप फेक, तो ताकि सबका एंटीना चालू होता है उस तरीके से सोचने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई एम ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर्स, मैं आज उनको ये भी बोल रहा हूं, व्हेन यू आर लुकिंग एट एविडेंस, एक बार आप पुलिस ऑफिसर के दिमाग में चमकना चाहिए, क्या ये सब डीप फेक तो नहीं है. क्योंकि possibility is always there of a fraudster, criminal using deep fake to his advantage. अब यूज करना शुरू कर दिया. Okay, so now your brain working is very important or you getting into issues. Now ये मैंने आपको दो चार फ्रॉड बताया और भी we'll keep talking, सवालों में लेंगे. Let's come to the solutions part of it. Okay, when to stop, please tell me, because I also want to listen to everything. So रेमेडीज क्या है? सबसे पहला दो नंबर आपको याद रहना चाहिए. मैं दो बोल रहा हूं, 1930, एंड बिकॉज यू आर इन महाराष्ट्र, 14407. 14407. 1930 जो नंबर है वो MHA का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दिल्ली वालों का. 14407 महाराष्ट्र साइबर का नंबर है. महाराष्ट्र साइबर पुलिस, अपना जो पुलिस है, उन्होंने एक पूरा कॉल सेंटर बनाया, नवी मुंबई में ऑपरेट करता है, लोग बैठे हुए हैं वहां पे. ओके, सो दोनों ही आपको मदद कर सकते हैं. तो दोनों में फोन कीजिए, 1930 को फोन कीजिए. अभी मैं दिक्कतें बता नहीं पाऊँ, लगा 1930 की दिक्कतें क्या है, बहुत दिक्कतें है, बट डोंट गेट डिजेक्टेड, है ना. इंडिया है तो दिक्कतें आने वाली, ये हमेशा मान के चलेगा. लग्जरी मिलेगा, डोंट हैव दैट होप्स कि 190 उठाएगा, हाँ पूछेगा, तुम्हारा दुख दर्द बांटेगा, जरूरी नहीं है. यू हैव टू कन्विंस, यू हैव टू टेल देम, हैव पेशेंस. अब
अभी नहीं उठाया, वापस फोन करो उनको, दे पिक, कीप दैट पेशेंस। मेनी टाइम्स वो भी एग्जीक्यूटिव ड्यूटी करते हैं तो रात में नहीं होते तो वो भी अपने को पेन सहन करना पड़ता है। समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी 1930 चलता ही नहीं है, मतलब वो जैसा अपना टेक्नोलॉजी देखा ना वही हाल तो वो होता है। तो इसलिए मैंने आपको एक नंबर दिया 14407, यू कैन ट्राई दैट आल्सो। फोन में अगर आपको विश्वास नहीं है, इंटरनेट पे विश्वास है, तो cybercrime.gov.in, आई रिपीट, सिर्फ गूगल पे साइबर क्राइम लिख के मत छोड़ो, और एक फ्रॉड होगा आपके साथ में। हा? किसी ने तो वेबसाइट बना के cybercrime.in, वहीं चले जाओगे आप। cybercrime.gov.in, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मेरा कि .gov.in मतलब गवर्नमेंटल वेबसाइट्स, इधर क्लियर? .gov.in मतलब गवर्नमेंटल वेबसाइट। सो इस पे जाके आप अपना कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो। प्लीज नोट, ऐसे कोई भी खाम में मत रहिए कि cybercrime.gov.in पे आपने FIR दर्ज किया, शब्द गलत मत इस्तेमाल कीजिए। आपने दिया है कंप्लेंट, ये कंप्लेंट फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म है जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को देता है। तो अभी आपको फोन आएगा नहीं आएगा वो सब आपका नसीब है, बट आपने पहला कंप्लेंट कर दिया, उससे कुछ एक्शंस होती है एंड देन यू कैन प्रोसीड। 1930 फोन करने से क्या होता है? बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे, नॉट डू बिग एक्सपेक्टेशंस, राइट? 1930 पे फोन करने से व्हाट हैपेंस इज इन दैट गोल्डन आवर वो पैसा ब्लॉक कर देते हैं। पैसा ब्लॉक करने से आप में बड़े सपने में नहीं दिखाना होगा, एक आशा निर्माण होती है कि मेरा पैसा कहीं तो रुका है, ठीक है? अगर आप सुस्त रहे, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, एक से कंजूस लोग हैं इंडिया में, पैसा सर मेरा पैसा ब्लॉक्ड है, खुशी ना, कितने दिन हुए? 15 दिन। अच्छा 15 दिन से ब्लॉक्ड है। अभी ना आई टेल यू द सिनेरियो दैट एंड, बिकॉज़ 1930 तुमने बोल दिया, एज अ लॉयर आई शुड टेल यू द प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट? अभी कहां ब्लॉक्ड है आपका पैसा? कहां ब्लॉक्ड है? वो किसका बैंक अकाउंट है जिसमें ब्लॉक हुआ है? किसका नाम बोलो? फ्रॉडस्टर, क्रिमिनल का। तो क्या उसके अकाउंट में सिर्फ आपका पैसा है? वो तो फ्रॉड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है ना, तो उसके ऊपर आप जैसे 10 विक्टिम्स का फ्रॉड पैसा वहां पे आया कि नहीं? तो जिस दिन आप पे फ्रॉड हुआ, मुमकिन है कि 4 और लोगों पे भी फ्रॉड हुआ है ना? वो भी तो 1930 फोन कर रहे हैं, उन्होंने भी तो ब्लॉक किया है। अभी उसके बाद का प्रोसेस क्या है? फाइलिंग रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट एंड गेटिंग द फ्रीज अमाउंट टू योर ओन बैंक अकाउंट, बराबर? अभी दिक्कत क्या आती है? हम लोग जब रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का दाखिल करते हैं, कोर्ट में ऑर्डर भी ले लेते हैं, हम जिन्हें करके आर्ग्यू करके वी टेक द ऑर्डर्स। व्हेन वी गिव इट टू द बैंक सेज सर 12 लाख रुपए अकाउंट में है एंड आई एम हैविंग 5 कोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, एंड ये 4 या 6 जो कोर्ट ऑर्डर्स है, इसको जब टोटल करता हूं मैं तो वो आ रहा है 50 लाख। बैंक अकाउंट में कितने? अभी आपने कोर्ट ऑर्डर से कौन धर्म संकट में आ गया? बैंक। अभी हम लोग इंतजार करते हैं, फिर हम जाके कोर्ट के सामने फाइल करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑर्डर पास नहीं किया गया। फिर बैंक क्या करती है? हाईकोर्ट में जाती है ये सब लेके, रिट दो, रिट गिव अस द डायरेक्शन, पैसा किसको देगा? इसमें मामले अटके हैं। अभी तो गोल्डन आवर सिर्फ 4 घंटे वाला भी नहीं है कि आप 4 घंटा ब्लॉक करने के बाद में सो मत जाओ, मेरा पैसा फ्रीज दे। अगले 4 घंटे में कैच अ लॉयर, फाइल रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी और डीफ्रीजिंग वाला ये, एंड ट्राई टू गेट द ऑर्डर फास्ट, गिव इट टू द बैंक एंड टेक द मनी। किधर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? ओके, so being fast when the fraud happens is in your favor.
If you are lazy, late, things don't go well. Because the fraud account is a place where frauds are going to happen. आज नहीं हुए कल होगा पैसा. Because वो क्या करते हैं मालूम है ना? वो डेबिट फ्रीज करते हैं उसका, क्रेडिट फ्रीज नहीं करते. तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझ रहे ना? क्रेडिट फ्रीज नहीं करते. दैट मीन्स व्हाट? आई एम अ फ्रॉडस्टर. मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है, किसी ने मेरे को पैसा भेजा, विक्टिम का पैसा आया 5 लाख रुपए मेरे पास. ओके, 10 लाख रुपए था, 5 लाख आया, और एक विक्टिम का 15 लाख रुपए आया. ओके, नाउ द इश्यू इज एक अगर पैसा आ रहा है मेरे पास है, एक कोर्ट ऑर्डर है तो ठीक है, तो एक कोर्ट ऑर्डर से मेरा हो गया, डेबिट फ्रीज हो गया. ओके, लेकिन मुमकिन ये है कि और भी फ्रॉड का पैसा मेरे पास आते जा रहा है एंड माय अकाउंट गेट्स विशिएटेड बिकॉज वो फ्रॉड का पैसा अगर मैच नहीं होता है, कोई गलत कोर्ट ऑर्डर ले लेगा तो दिक्कत है. ओके, सो द टेक अवे इज go to the court very fast. Now I also want to tell you that some good cyber police stations have tamed the court so much that सिर्फ पुलिस में लिखने से लेकर जज ऑर्डर पास करता है, लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है. वो सब जजेस नहीं करते, वो होना जरूरी है, वो भी होना जरूरी है. जैसे हमारा बैंड्रा कोर्ट में होता है, नवी मुंबई वाशी कोर्ट में होता है, लॉयर वो तो जज खुद बोलता है, काय को लॉयर को पैसा ऑलरेडी विक्टिम, व्हाई यू वांट टू स्पेंड ऑन लॉयर्स, द पुलिस लेट मी राइट अ लेटर टू हिम कि दिस मच अमाउंट नीड टू डिफ्रीज इट. अभी अपने पुलिस साहब गए तो मतलब ये नॉट अ पुलिस नाउ बट यू नो स्टिल आईपीएस इज एन आईपीएस. ये 1930 से सबसे बड़ा करप्शन चालू हुआ है इंडिया में. नंबर 1 करप्शन, सबका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं. लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3. मतलब आपके अकाउंट में 200 रुपया आया, किसी का फ्रॉड 200 रुपया आया और आपके अकाउंट में है 20 लाख रुपया, फ्रीज कर देते हैं. अच्छा, फ्रीज कौन कर रहा है? हरियाणा वाला पुलिस. ओके, तो अभी आपके पास रेमेडी क्या है? Either you hire a lawyer in Haryana or you go to the police officer in Haryana, negotiate with him. बहुत ही difficult word है. Negotiate with him because he knows now you are a गर्जू आदमी. 20 लाख अटका है आपका, हम 200 के बदली 20,000 रुपए दोगे उसे. ये बड़ा फ्रॉड चल रहा है, सब जगह चल रहा है, फ्रीजिंग अमाउंट. ओके, and madam you should do this research ki how much amount of money is being freezed in Indian banks due to police order, and इसका फिगर भी यही हजारों करोड़ों में आने वाला है. और उसका आगे क्या? ओके, सो बिकॉज सी मनी डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने यहाँ होता नहीं है. पीएमएलए में केसेस कब के चल रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं. बैंक है नहीं होगा फिर. सो डीफ्रीजिंग के लिए कुछ तो होना चाहिए. बैंक है अभी कोर्ट ने पुलिस ने ऑर्डर दिया, बस है, पैसा है. ओके, सो दिस इज अनदर फ्रॉड. सो द फ्रॉड, इट्स नॉट वन फ्रॉड. एक फ्रॉड आपको पता है, फ्रॉड के अंदर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, nobody is trying to guess that and trying to unearth that fraud. See, if it is a milking cow for banks, for police, then the fraud is not going to go away. Okay, systems will milk. फिर अभी इसमें एंट्री कहां से हो जाती है? ये जो बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं, इनको पनाह कौन दे रहा है? लोकल पॉलिटिशियंस, बिकॉज इट इज फंडिंग देयर इलेक्शंस. तो ये सीधे से इंट्रिकेट घुस गया है. हम लोग सुपरफिशियल बात कर रहे हैं कि फ्रॉड से कैसे बचे. ये इंट्रिकेसी जो बढ़ गई है, ये दिक्कत है. इससे कमा कौन रहा है? मोबाइल ऑपरेटर भी कमा रहे हैं. क्या मोबाइल ऑपरेटर के स्विच पे ये नहीं समझ रहा है कि फ्रॉम अ स्मॉल विलेज लाइक जामतारा दिन में 5 लाख कॉल जा रहे हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल?
इतना एआई तो एल्गोरिथमिकली कैलकुलेट कर सकता है ना कि कितने लोग हैं, एवरेज फोन कितना, इतना होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है सो जनरेट अ फ्रॉड अलर्ट, हो नहीं है। नंबर 2, ये आइडिया बेस्ड सबको आ रहा है ना। सी मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं टीवी में भी जाके बोलते रहता हूँ, ओके। आइडिया बेस्ड फ्रॉड आ रहा है ना तुम लोग, तो आइडिया बेस्ड फ्रॉड आ रहा है तो वेदर अ कॉल इज पुट ऑन आईवीआर, नॉट पुट ऑन आईवीआर, हाउ इट इज ऑपरेटिंग, वो भी एल्गोरिथमिकली फाइंड कर सकते हैं। वो क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज द सिस्टम इज गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। ओके, सो इट इज नॉट people losing money, it is people making money is also the hindrance for stopping this kind of fraud. Okay, तो अभी ये सिस्टम में घुस गया है। नया फ्रॉड आता है ना तो सब लोग सोचते हैं इसको कैसा बंद करें। एक फ्रॉड पुराना हो जाता है ना तो वो एक सिस्टम बन जाता है, एंड टू ब्रेक दैट सिस्टम गॉड ब्लेस अस, एंड वी आर एट दिस स्टेज of cybercrime, cyber fraud become a system of making money in the other world. Okay, that is what we are fighting against. So cybercrime बोल के फायदा नहीं है। It is cybercrime के अलावा सब बाकी क्राइम है। ये सोशल इंजीनियरिंग क्राइम है, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग क्राइम है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ टीवी पे जाके, why is not the organized गैंग का सेक्शन लगाते हैं लोग उस पर? Police is not applying. Organized, because now cybercrime is also falling under this organized crime gang and the definition. ये एफआईआर नहीं मिलती मुझे जिसमें वो सेक्शन लगाते हैं। मैं आपको एक एक्सीलेंट एग्जांपल देता हूँ कि and then I'll stop. तेलंगाना में एक एक्ट है, गुंडा एक्ट। वो गुंडा एक्ट क्या बोलता है कि आपको एक ही क्राइम में 2 बार पकड़ेंगे ना तो गुंडा क्या रहेगा। See, in one crime, if you are caught second time for the same crime, मतलब भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने वाला बंदा है, एक बार पकड़ा उसको पुलिस ने, वापस पकड़ा तो गुंडा एक्ट लगाता है बाय डिफॉल्ट। और वो गुंडा एक्ट लगने से वो नॉन बेलेबल होता है, उसको बेल मिलता ही नहीं है 6 महीने। तो तेलंगाना में यू नो वेल, सी आई एम अ डिफेंस लॉयर, डोंट टेक इट अदर वे, आई हेल्प सो मेनी विक्टिम्स, मेरे पास वो भी आता है फ्रॉडस्टर्स। तो वकील है, करना पड़ता है as because we have taken the oath, so we can't deny, आता है, we know the, हमको दोनों साइड से पता है कैसे चलता है, तो हमको we have to guide them also sometimes। तो मेरा पहला ये रहता है हमको बोलना कि तेलंगाना में फ्रॉड मत कर। दूसरी बात, और मैं ये सोचता हूँ कि वही सेम गुंडा एक्ट अपने को मुंबई में लागू करना चाहिए, नहीं? फॉर दिस फाइनेंशियल क्राइम्स वो बेस्ट सोल्यूशन है अपने पास। ऐसा नहीं कि हमको कुछ नया ढूंढना है, एक सोल्यूशन चल रहा है, लगा दो। ओके, तो सम थिंग्स नीड्स टू बी डन, टू बी थॉट डिफरेंटली, अलग इसमें सोचने की हमको अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू फॉर टुडे टेक अवे इज, सी अवेयरनेस इज द की। नहीं तो कुछ चीजें करो ही मत। एट योर एज आई वुड सजेस्ट ये चीजें मत करो। क्या मत करो? आईवीआर फोन जैसा आता है ना आवाज, हेलो दिस इज कॉल फ्रॉम, ऐसा बंद कर देंगे। भले प्रेसिडेंट ट्रम्प का फोन बंद कर देंगे, ऐसा मान के चलो अंदर, है ना? भले तुम्हारा इनकम टैक्स रिफंड दे रहे हैं तुमको, सचमुच का रहा है, फिर भी मत करो। There are other modes and mediums of answering the call. Why you want to take that IVR? मत करो IVR. This is very specific to senior citizens, I am telling you. Second, inebriated state. दारू पियो, पार्टी वार्टी किया, don't answer the phone. I have clients which are very big clients, which are nice, lost money after party. Because तब सब सच लगता है। वो बोलता है कार्ड निकालो, अब निकाल दो, घुमाया, सीवीवी नंबर क्या दे दिया, सफेद पार्टी और दारू दोनों उतर दिया, पैसा भी उतर जाता है। तो पार्टी के बाद नो बैंकिंग, नथिंग। इन फैक्ट दिस इज लिटिल नॉट व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ ये।
आप लोग फोन बैंकिंग करो ही मत। मतलब वेरी ऑर्थोडॉक्स, बट सीन ऐसा है ना अपने पास कि आई हैव टू गिव सम काइंड ऑफ सजेशन फॉर सीनियर सिटीजन वगैरह से, मत करो फोन बैंकिंग। ओके, जो आपको समझता है, जमता है, और आहिस्ता से करो, घाई घाई में मत करो। जो भी घाई में फोन कर रहा है ना आपका, जा, मेरे को कोई घाई नहीं है, मैं रिटायर्ड है, आराम कर रहा हूँ। ओके, सो दिस हेस्ट वेस्ट लॉट ऑफ योर मनी। ओके, हेस्ट मत करो। अब मेरा लास्ट एडवाइस जो मैं हमेशा समझा देता हूं, देखो ये थोड़ा सोशलिस्ट एडवाइस है कि हमने तो मांगा नहीं था ना बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, ये मांगा था क्या हमने? नहीं मांगा। हमारा तो बैंक खाते से, चेकबुक से काम चल रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए, बट अगर उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, डिजिटल इंडिया, एंड टू शो दैट आई एम इन द 21st सेंचुरी, इंडिया कितना बड़ा है, आपका सबको यूज करने पड़ रहा है, पैन के साथ इसको लिंक करो, इंडिया स्टैग बना रहे हैं हम लोग, प्रोग्रेसिव है ना हम लोग। तो किसने कहा कि हम प्रोग्रेसिव गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो हम एक्सीडेंट करेंगे तब तुमने कंपलसरी इंश्योरेंस लेने को बोलते हो, या फिर अगर गवर्नमेंट जानती है कि कोई खतरा है तो इतने लाखों का इंश्योरेंस, गवर्नमेंट पीएम जो योजना चल रही है उसमें आपके हेल्थ के लिए इंश्योरेंस दे रही है, तो ये भी तो हमारा डिजिटल हेल्थ है। इफ इट इज डिजिटल इंडिया, देन व्हाई नॉट डिजिटल इंश्योरेंस? अगर आप डिजिटल हेल्थ के लिए मुझे प्रधानमंत्री अगर ये दे रहा है तो छोटा पार्ट और दे दो ना, और जो गरीब लोग हैं आप वो रखो, थ्रेट रखो कि अगर कुछ गरीब है उसका पैसा जाता है, यूपीआई जाता है, तुरंत दो ना उसको। यूपीआई बनाया तो ऐसा ही ऑनलाइन इंश्योरेंस वाला दे दो, तुरंत क्लिक करेगा, पैसा गया, पीएम इंश्योरेंस पे पैसा क्लेम करो, 2 दिन में पैसा, आराम से हो सकता है। नहीं हो सकता? तो अगर हमने मांगा नहीं था डिजिटल इंडिया, तो आपने हमें डिजिटल इंडिया दिया है, मतलब वी वांट दिस, तो डिजिटल इंडिया का इंश्योरेंस भी तो दो। और दूसरी चीज, डिजिटल इंडिया की रेमेडी हम कोर्ट में जाके कैसे ले सकते हैं? जो ऑनलाइन में हम डूब रहे हैं वो ऑनलाइन हमको रेमेडी दो, ओडीआर करो, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाओ, कुछ तो करो। ऑनलाइन के जब वर्ल्ड में हम कोर्ट में जाके फाइल करके अगर वो ले रहे हैं, कितना तकलीफ है उसमें। द ट्रस्ट इन डिजिटल इंडिया विल ओनली गेट एस्टैब्लिश, अभी आप देखो पूरी नहीं, will only get established if there is effective digital remedy, and if there are effective digital insurance where people are being done good when they really need, the government. Thank you for patiently listening to me. Thank you. It was a wonderful learning. Thank you.